Good morning, student. In last lecture, we have discussed about the convolution and the problem based on the convolution theorem. And in today's class, we will discuss about the system. So, first, what is the definition of the system? System is the combination of one or more independent block, okay, having some characteristics, and these characteristics is superimposed on the input signal and give you a desired output. Okay, so suppose this is my system, and system is always has some characteristics, and we always applying an input on the system, and the characteristic of this system is applied on the input and give you a output. कोई भी मैं सिस्टम देखूं, that is always the combination of the block. जैसे अगर हम कॉलेज की बात करें, कॉलेज is also can be treated as the system. So college, if we treat it as a system, has the different block as examination cell, T&P cell, discipline cell, okay, academic cell. तो सिस्टम यानी अगर कॉलेज की बात कर रहे हैं तो ये अलग अलग मेरे बहुत सारे ब्लॉक हैं. एग्जामिनेशन सेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका काम एग्जाम कराना है. टीएनपी की बात करें तो उसका प्लेसमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी है. डिस्प्लेसमेंट डिसिप्लिन के कोई मेरे न्यूसेंस क्रिएट ना हो. सो दीज ऑल ब्लॉक किसके लिए काम कर रहे हैं? दिस इज फॉर द इनपुट. और इनपुट क्या होगा? इनपुट इज द 12th पास स्टूडेंट. अगर हम इंजीनियरिंग स्ट्रीम की बात करें तो अगर हम ग्रेजुएट की बात करें तो 12th पास स्टूडेंट मेरा इसका इनपुट है. And these all are working for the 12th pass student, and you are getting a output. Okay, output जो होगा that is a graduate student. So basically, how can we define a system? System is the combination of block having some characteristics. अलग अलग सबकी characteristics है, and these all characteristics are superimposed on the input signal and give you a output signal. Okay, so that is the system. And if we represent the input as xt, output is as by t, and system characteristics are put by ht. So mathematically, how the xt, ht and by t are related? So in time domain, output by t is a convolution of xt with system characteristics, which is known as the impulse response. So by t is the xt convolution of ht. This is in time domain, and if you go into the frequency domain, so if we represent the frequency domain as by s and xt as the frequency domain xs and ht as hs. So in frequency domain, output is the multiplication of input and the system characteristics, or basically HS, that is the characteristics in frequency domain, is known as the transfer function, and definition by XS is output in frequency domain upon input in frequency domain with all initial condition are 0. Okay, so that is defined as the system characteristics by the transfer function. And what is that? Transfer function HS is always output in frequency domain upon input in frequency domain with all initial condition are 0. Okay, so this is the definition of the system. Now we will discuss about the properties of the system
क्या क्या मेरी प्रॉपर्टी होती हैं. One by one we will discuss about that properties because there are a number of questions based on these property comes into the competitive exam. So see, so based on property system classified as one is linear and non-linear system, time invariant versus variant system, causal versus non-causal system, okay, memoryless versus dynamic system, and invertible oblique inverse system. Okay, one by one we will discuss about all these system: linear and non-linear, time invariant, variant, causal, non-causal, memoryless, dynamic, invertible and vertible system. So first we are discussing about the linear and non-linear system. So as we have said, a system has basically three things: input, output and the system characteristics as HT. Okay, so basically by the output is always a function of xt. Okay, so how can we define linear system? Linear system are those systems which follow the rules of superposition. यानी जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, दैट इज माय लिनियर सिस्टम. और सुपरपोजिशन जैसे हमने थ्योरम्स पढ़ी थी नेटवर्क में, सुपरपोजिशन का सिग्निफिकेंस क्या है? इफ वी अप्लाइंग द डिफरेंट इनपुट 1 2 3 एंड गेटिंग द आउटपुट 1 2 3, जैसे x1 x2 x3 एंड गेटिंग द आउटपुट by 1 by 2 and by 3, तो आउटपुट शुड बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रेस्पॉन्स. और डेफिनेशन वाइज अगर हम लिनियरिटी की बात कर रहे हैं तो सिंपल क्या कह के चल रहा है? लिनियर सिस्टम आर दो सिस्टम विच फॉलो द रूल्स ऑफ सुपरपोजिशन. यानी जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है वो मेरा लिनियर सिस्टम है. एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑलवेज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रॉपर्टी. वन इज scaling and second one is the additive property. ओके, इसके साथ मैं फॉलो कर रहा हूँ. तो आउटपुट और इनपुट इक्वेशन जो होगी वो एक लिनियर इक्वेशन है या सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन हो सकती है, मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है. देन हाउ कैन वी चेक दैट इज अ लिनियर सिस्टम और नॉन लिनियर सिस्टम? तो करना क्या है कि पहले इनपुट की अगर हम बात करें बाई टी इज द फंक्शन ऑफ एक्स टी, मुझे इनपुट एक्स टी की जगह मैंने x1 टी इनपुट रखा एंड वी विल गेट द आउटपुट बाई 1 टी. देन पुट xt एज x2 टी एंड गेट द आउटपुट बाई 2 टी एंड देन पुट द इनपुट x3 टी एंड गेट द आउटपुट बाई 3 टी. ठीक है, इनपुट आउटपुट जो रिलेशन दे रखा है उसमें मुझे इनपुट x1 x2 x3 रखी है, बाई 1 बाई 2 बाई 3 रखी है. x3 इनपुट अब मुझे इस तरह से चूज करना है. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलिंग प्लस एडिटिव प्रॉपर्टी, दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए. और x3 शुड बी इन टर्म ऑफ x1 एंड x2. तो मुझे स्केलिंग चाहिए. स्केलिंग सिग्निफिकेंस मल्टीप्लाइड द इनपुट विद ए कांस्टेंट टर्म. तो मैंने क्या किया, a की जगह ax1 t ले लिया, ऐसे ही x2 की जगह कितना ले लिया, bx2t. यानी what we are doing, we are scaled x1t by a and scaled x2 by b, and second term is the
additive. Additive means in दोनों का combination ले रहा है. We are putting here a positive sign. So x3t should be equal to take the value of x3t as ax1t plus bx2t. ये वैल्यू लेनी है. जब आपने ये इनपुट ले लिया x3 and when you put x3 is here, if output by 3t is a by 1t plus b by 2t, then your system is linear, otherwise non-linear. So that is the procedure how can we find the system is linear or non-linear. तो सिंपल linear मतलब जिस रेशियो में मेरा इनपुट इंक्रीज करे उसी रेशियो में अगर मेरा आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, यानी बेसिकली proportionality ratio between input and output is constant, that system is linear. and method मुझे इस तरह से अडॉप्ट करना है. क्वेश्चन मेरे गेट में, पीएसयू में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम में किस तरह से आते हैं या पॉसिबल केस कैसे है, यह देखते ही मैं कैसे पहचानूंगा. हम 1 by 1 डिस्कस कर रहे हैं ऑन द लिनियर एंड नॉन लिनियर सिस्टम. तो ध्यान देना. सो सपोज मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर. पहला एग्जाम्पल हम लेके चलना बाई टी इक्वल टू सपोज 2xt. अगर मैंने एक इनपुट लिया बाई टी इक्वल टू 2xt, दिस इज अ लिनियर और नॉन लिनियर सिस्टम. क्या करना है, xt की जगह x1 x2 x3 आउटपुट हम करेंगे बाई 1 बाई 2 एंड बाई 3. सो पुट 2x1t, दिस इज इक्वल टू बाई 1t. नाउ x2t के करस्पॉन्डिंग आउटपुट इज बाई 2t and x3t के corresponding output by 3t. This is equation 1, 2 and 3. Now x3 की वैल्यू कैसे लेनी है? This is the combination of x1 x2 ax1 plus bx2. So x3t equal to ax1t plus bx2t. ये मैंने लिया and now put the x3t value is here. So by 3t is equal to 2 and x3t is ax1t plus bx2t. This is not x3, this is x2. bx2t. So this term by 3t is now a, bracket में open कर रहा हूँ, a 2x1t plus b into 2x2t. So from first equation, this 2x1t is equal to the by 1 and this 2x2t is now my equal to the by 2t. So basically now what we find, by 3t is equal to a by 1t plus b by 2t. So my relation is as we have said, now by 3 is a by 1 plus b by 2. So this system is an linear system. Okay, तो important क्या निकल गया है, by t equal to kxt टाइप कोई भी सिस्टम है वो मेरा लिनियर होगा. पहला. सेकंड, मैं ये हटा रहा. नेक्स्ट एग्जांपल पे जा रहे हैं. नाउ सपोज वी ऐड ए कांस्टेंट टर्म हियर that is by t equal to 2xt plus 3. This equation is looking like a linear equation. Linear equation है. That system is linear or not? So see what will happen. If अगर मैं बात करूँ 2x1t plus 3, this is by 1t. x2 रख रहे हैं 2x2t plus 3, this is by 2t. 2x3t plus 3 equal to by 3t. x3t की जगह क्या रखना है, वही ax1 plus bx2. So now replace x3t as ax1t plus bx2t plus 3. So this term is कितना हुआ, 2ax1t plus 2bx2t plus 3. ये टर्म बन गया है मेरा. लेकिन अगर मैं a by 1 plus b by 2 लगाएं, this is the value of by 3t, and if we calculate the value of a by 1t plus b by 2t, ये कितना होगा, a by 1 कितना आ जाएगा, 2a x1t plus 3a plus b by 2t कितना हो जाएगा, 2b
x2t प्लस 3, तो कंडीशन क्या है, दिस बाई 3t is not equal to a by 1 plus b by 2. So here by 3t is not equal to a by 1t plus b by 2t. So this equation is not, this system is not an linear system. Linear equation जरूर है, लेकिन this is not the linear system. तो अगर कोई कांस्टेंट टर्म, क्योंकि मुझे क्या करना है, यानी हमारा अभी तक कंक्लूजन क्या, बाई टी इक्वल टू के एक्स टी लिनियर होगा, लेकिन अगर इफ वी ऐड कोई कांस्टेंट टर्म बाई टी इक्वल टू के वन एक्स टी के एक्स टी प्लस सपोज ए इज एन कांस्टेंट टर्म, द सिस्टम बिकम नॉन लिनियर. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है जो ध्यान रखना है क्वेश्चन में. नेक्स्ट, मैं टाइम में कोई भी चेंज कर दूं, अगर मैं कहूं बाई टी इक्वल टू सपोज 2, अगर मेरी इनपुट की कोई पावर बन जाए 2x² टी, 2 इनपुट x² टी, तो इनपुट की पावर आप जब भी स्क्वायर करेंगे सिस्टम बिकम नॉन लिनियर, क्योंकि आप x1 रखोगे फिर x2 रखेंगे फिर x3, और x3 की जगह a x1 प्लस b x2 तो उसका होल स्क्वायर बनेगा, तो सिस्टम नॉन लिनियर आ जाएगा. तो पहला बाई टी इक्वल टू के एक्स टी मेरा लिनियर होगा. कोई भी कांस्टेंट टर्म आई सिस्टम बिकम नॉन लिनियर. पावर ऑफ इनपुट, अगर पावर में कोई भी इनपुट आता है, पावर ऑफ इनपुट, देन सिस्टम इज नॉन लिनियर. फर्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखना. सेकंड एंड थर्ड, पावर ऑफ इनपुट नॉन लिनियर हो जाएगा. अगर मैं टाइम को वेरिएबल बना दूं, अगर मैं कहूं बाई टी इक्वल टू सपोज 2x टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, दिस इज एन लिनियर और नॉन लिनियर. अब मैंने क्या किया, इनपुट को वेरिएबल बनाया, ठीक. तो वही पहले की तरह आप x की जगह x1 रखोगे ये टर्म, फिर x2 रखेंगे फिर x3 रखेंगे, तो वही. तो अंदर वाली जो टर्म है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. तो यू विल फाइंड दैट by 3t is again a by 1 plus b by 2. तो टाइम वेरिएबल से मुझ पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लिनियरिटी का क्या सिग्निफिकेंस है, लिनियरिटी वी आर नॉट चेकिंग विद रेस्पेक्ट टू द टाइम. हम कह रहे हैं इनपुट का मैग्नीट्यूड जिस रेशियो में इंक्रीज हो उसी रेशियो में मेरा आउटपुट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होना चाहिए. यानी प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट शुड बी कांस्टेंट. तो अगर हम फोर्थ कंक्लूड, अगर मैं कहूं टाइम वेरिएबल, टाइम एज वेरिएबल डज नॉट अफेक्ट लिनियरिटी, उससे लिनियरिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो अभी तक हमने क्या कहा है, बाई टी इक्वल टू के एक्स टी टाइप की कोई भी इक्वेशन लिनियर होगी. कोई भी आपने एडिटिव बनाई सिस्टम नॉन लिनियर, आपने कोई भी इनपुट पावर किया तो नॉन लिनियर. इस तरह से मेरे नॉन लिनियर हो जाए. ओके, नाउ नेक्स्ट we are moving on the differential equation. ध्यान देना, मान लो कोई मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो मैं कैसे पहचानूंगा दैट द इक्वेशन इज लिनियर और नॉन लिनियर इक्वेशन. देन इसके सपोज सिंपल इक्वेशन लेके चल रहा हूं, del by upon del t प्लस del by t प्लस 2 by t इक्वल टू सपोज x. दिस इज एन लिनियर और नॉन लिनियर इक्वेशन. मुझे चेक करना है वही पहले की तरह आप इनपुट क्या रखें, xt की जगह x1 रखा आपने x1t, दिस इज 2 by 1t प्लस del by 1t upon del t. Now replace x2t, x as x2t, this is 2 by 2t plus del of by 2t over del 2t. Now x3t, third input is x3, this is 2 by 3t plus del by 3t over del t. इनपुट x3 कैसे लेना है, वही ax1 plus bx2. So x3 is ax1t plus bx2t. यहाँ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ ax1t, ये x1t है, इसमें a की मल्टीप्लाई करके लिख रहा है, तो हमारा टर्म कितना हो जाएगा, दिस इज x3t is ax1t, a del by 1t upon del t plus 2a by 1t. ये हो गया मेरा ax1t प्लस
बी एक्स टू टी मेरा ये है, इसमें मल्टीप्लाई करना, बी डेल बाई टू टी ओवर डेल टी पहला टर्म प्लस टू बी बाई टू टी, ठीक है। मैं इस इक्वेशन में इसको साथ में ले रहा हूँ, ए एन कांस्टेंट इनसाइड ले जा रहा है, डेल अपॉन डेल टी, दिस इज ए बाई वन टी, दोनों को कंबाइन कर दे रहे हैं, प्लस बी बाई टू टी। तो मैं ओपन करूंगा तो वही ए डेल बाई वन अपॉन डेल टी प्लस बी डेल बाई अपॉन डेल टी, इन दोनों टर्म को मिला के हम ये टर्म लिख सकते हैं, प्लस टू ए बाई वन टी प्लस बी बाई टू टी आया। तो अगर मैं अब कंपेयर करूं इस इक्वेशन से, जहां जहां बाई 3 है, in right hand side this is a by 1 plus b by 2, so this equation is my linear equation, मेरी linear equation होगी। ओके, अब देखते ही मुझे कैसे पहचानना है मेरी इक्वेशन linear होगी या नॉन linear। देखो कोई भी डेरिवेटिव की पावर अगर मैं कह दूं, जैसे डेल बाई अपॉन डेल टी होल स्क्वायर कर दूं प्लस टू बाई टी इक्वल टू एक्स टी, इक्वेशन नॉन लीनियर हो जाएगी। तो डेरिवेटिव की कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, डेरिवेटिव मिसिंग हो सकता है, मैं ये कह दूं डेल स्क्वायर बाई अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस के बाई टी इक्वल टू एक्स टी, दिस इज लीनियर और लीनियर, सॉल्व करोगे तो लीनियर ही आएगी, ठीक है। डेरिवेटिव मिसिंग हो सकता है, यानी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, आप कितने तक भी जाए इक्वेशन लीनियर ही रहेगी। डेरिवेटिव में बी मिसिंग बट देयर शुड बी नो पावर ऑफ द डेरिवेटिव, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इनपुट में अगर कोई भी एडिटिव टर्म आए तो सिस्टम नॉन लीनियर बन जाएगा। कांस्टेंट यानी बाई टी इक्वल टू के एक्स टी, इन लेफ्ट हैंड साइड किसका ध्यान रखना है, डेरिवेटिव की कोई भी पावर ना आए। ऐसे राइट हैंड साइड केवल टर्म किस तरह की होनी चाहिए, दिस इज ओनली द टाइप ऑफ के एक्स टी, देन द सिस्टम इज द linear system. Okay, point is clear. So in today class we have discussed about the linear and non-linear system. एक एग्जांपल और ले ले रहा है, देखते ही मैं कैसे पहचानूंगा। जैसे मैं कहूँ बाई टी इक्वल टू सपोज 3x टी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 डेल बाई अपॉन डेल टी होल स्क्वायर प्लस 2 बाई टी इक्वल टू 4x टी बाई टी इक्वल टू 3x टी स्क्वायर प्लस 4, ओके, बाई टी इक्वल टू 4 रूट x, ओके, x टी। तो चेक दैट द सिस्टम इज लीनियर और नॉन लीनियर। ओके, यहाँ पे ये टर्म एडिटिव आ गई इसलिए सिस्टम नॉन लीनियर हो गया। अगर ये टर्म नहीं होती सिस्टम लीनियर रहता, जो इस इक्वेशन से गवर्न होता। यहाँ बात करें डेरिवेटिव ऑफ पावर आ गया, फिर अगेन नॉन लीनियर हो गया। अगर ये टर्म नहीं होती तो मेरा कैसा रहता, लीनियर रहता। दिस इक्वेशन की बात करें, बस बाई टी इक्वल टू के एक्स टी, टाइम वेरिएबल है बट ओनली के एक्स टी टाइप का, सो दिस इक्वेशन इज द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर होगी। यहाँ x की पावर 1/2 आ गया, आगे दिस इज एन नॉन लीनियर सिस्टम। 99% आप देखते ही पहचान लोगे इक्वेशन कौन सी लीनियर है या नॉन लीनियर, अदरवाइज सॉल्व द विद द additive and scaling property. Okay, today we will stop here and in next class we will discuss about the time invariant and variant system. Okay, thank you.